Hello everyone, I am Kartika and previously we people were discussing development chapter of your economics textbook, and the topic that I was discussing with you people was public facilities, and we people started this topic in my previous video. We were just in the middle of the topic when I had to stop the video because the time was over for that video. So I'll be continuing it today. So जितना मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में, मैं एक बार आपको फटाफट से वो बता देती हूँ. So we people discussed that goods and services are needed to live a good life, but अगर हम देखें कि money is required to live a good life, but it is not the only factor to live a good life. So therefore that it is true that money is needed, but it is not that it is the only thing which is needed. Next we will discuss that जो material things हैं, it is not the only thing which is required, but citizens require other thing other than these material things, that is respect and equal opportunities, respect for others. Plus, we will also discuss that money cannot buy you certain things like pollution-free environment, unadulterated medicines, protection from infectious diseases. So, therefore, we will discuss the need of a collective production of goods and services, जो कि बहुत important है और सबसे अच्छा और cheap तरीका है चीज़ों को प्रोड्यूस करने का. प्लस अगर एक डिजीज है तो उस पर एक इंसान अगर काम करता है तो वो इतना सक्सेसफुली नहीं कर पाएगा, रादर देन अगर पूरी कम्युनिटी उसके ऊपर एफर्ट डालती है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव वे में जो है वो उसको इराडिकेट कर पाएंगे. नेक्स्ट वी विल डिस्कस द 3 स्टेट्स, दैट इज केरला, हरियाणा, बिहार. इसका हम लोगों ने एग्जाम्पल लेकर के जो है पूरा जो ये टॉपिक था इसको डिस्कस किया था. सो वी विल डिस्कस दैट जो केरला है वहाँ पर मनी वाइज अगर हम लोग देखें, इनकम वाइज अगर हम लोग देखें तो इट इज on the second number in the list, but it has low infant mortality rate, it has high literacy rates, plus it has a good provision for health and education. but हरियाणा का अगर हम लोग देखते हैं तो वहाँ पे इनकम अच्छी है लेकिन इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इलिटरेसी जो है वो वहाँ पर ज़्यादा है. देन वी विल डिस्कस कि जहाँ पे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा पीडीएस, वहाँ पे जो है एक उस स्टेट का, इट इज अ स्टेट जहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका एक गुड न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस जो है उस स्टेट का रहता है. यहाँ तक जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था. नाउ आई विल बी टेकिंग द टॉपिक फर्दर. Last week people are left with one topic to discuss, which is sustainability of development. That is it. With this we people will be completing the chapter. जो जितने भी topics हम लोग complete कर लेंगे और then I'll be just taking up the discussion of the boxes and question answers, and we people are good to go with the chapter. It'll be completed. So let's start with the topic. जो remaining topic है public facilities का. So it is not surprising that in a small country, you know, in our neighborhood श्रीलंका का एग्जाम्पल से ही समझाया गया. इंडिया से जो श्रीलंका है, it is not a big country, but still it is ahead of India. It is having good economic growth का जो rate है वहाँ पर काफ़ी अच्छा है. Table 1.6 जो है, it shows that though Nepal and Bangladesh have low per capita income than that of India, yet they are better than India in the life expectancy. So नेपाल और बांग्लादेश को अगर हम देखें तो पर कैपिटा इनकम उन कंट्रीज का भी कम है, लेकिन जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है उन कंट्री का अच्छा है. So it is not that whenever you look at the economy of a country, it's not always the income. देर आर अदर फैक्टर्स एज वेल. तो हमने जो पूरा डेवलपमेंट का चैप्टर देखा है उसके अंदर क्या है कि जो डेवलपमेंट है वो एक ही तरीके की नहीं है. इट इज नॉट ओनली द मनी इज नॉट द बेसिस जब हम डिस्कस करते हैं इसको. देर आर अदर फैक्टर्स एज वेल. अब आपके यहाँ पे हाई डेथ रेट चल रहे हैं, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, इलिटरेसी काफ़ी ज़्यादा है, पर आप जो हो इनकम वाइज आपकी कंट्री सही है, तो क्या हम कह सकते हैं कि ऐसी कंट्री डेवलप्ड है? ऐसी कंट्री को हम डेवलप नहीं कह सकते हैं. सो वी नीड टू टेक इन अकाउंट ऑफ अदर फैक्टर्स अदर देन इनकम. वी पीपल नीड टू टेक इन अकाउंट ऑफ दोस. So moving on further, many improvements have been suggested in calculating HDI, that is Human Development Index.
And many new components have been added to the human development report, but by prefixing human to development, it has made it very clear that what is important in development is what is happening to citizens of the country. It is people, their health, their well-being, that is what is important. So therefore we people see that things that are important to say, that there is good development going on in the country. We people can see country जैसे नेपाल का हमने देखा और बांग्लादेश का देखा, वहाँ पे जो है इनकम ज़्यादा नहीं है इंडिया के अकॉर्डिंग, लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ पर ज़्यादा है. तो जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखते हैं या फिर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को देखते हैं, तो उसके अंदर है वो कहते हैं कि जो सिटीजन्स का वेलबींग है, हेल्थ है, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन मनी. So with this topic we people have ended the discussion. इतना ही discussion हमारा was remaining in this topic. We people when we people see this topic, when you people will see this topic in your book, you will find that there is a question in the end of this topic, which is, do you think there are certain other aspects that should be considered in measuring human development? Yes, anything which is integral to the development of a human being is something that should be considered important for measuring human development. Human development cannot only be taken in terms of money. There are other things as well. This is how people are living their life. Are they healthy? Are they living to a certain age which they should reach as a healthy human being? Then are they getting you know उनको फूड अवेलेबल है, शेल्टर अवेलेबल है या नहीं है. दीज आर द थिंग्स दैट पीपल नीड टू टेक इन अकाउंट. ऐसा नहीं है कि पॉपुलेशन जो है हमारी कंट्री का, पॉपुलेशन तो हमारी कंट्री का बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो जो पॉपुलेशन है वो पावर्टी में जी रहा है. वो जो पॉपुलेशन है वो बिना शेल्टर के जी रहा है, बिना फूड के जी रहा है, और हेल्दी भी नहीं है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ की ज़्यादा नहीं है, इनफैक्ट मोर्टालिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है. विमेन, they are not enjoying equality in the country. So do you think that that is a country जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है? सिर्फ इनकम के बेसिस पे हम कह रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. आई डोंट थिंक सो. दिस विल बी समथिंग जो कि हम लोग देखेंगे. So there are other factors as well. Yes, there are other factors. Moving on forward to the last topic, which is sustainability of development. So I'll just write sustainability of development. So जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से खुद को सस्टेन कर रही है, या किस तरीके से जो है डेवलपमेंट वो चल सकती है. दैट इज व्हाट वी पीपल आर गोइंग टू डिस्कस. सो व्हेन दिस टॉपिक इज स्टार्टिंग, दैट इज suppose for the present that a particular country is quite developed. They are asking you to think of a country which is quite developed. We would certainly like this level of development to go up further, at least be maintained for future generations. So we people will be like कि ठीक है, development का कुछ इस country में we people are considering this country to be developed, and then we people will be looking at कि ठीक है, जो development है ये और ऊपर जाए, और जो future generations हैं उनके लिए भी जो ये status है एक development का वो maintained रहे. So this is obviously desirable. This is something that every country wants. So however, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type and level of development are not sustainable. So presently अगर हम लोग देखें तो 20th century के हाफ से ही साइंटिस्ट ये वार्न कर रहे हैं कि जो प्रेजेंट टाइप का डेवलपमेंट है वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है. दिस डेवलपमेंट कैन नॉट सस्टेन. ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. क्यों नहीं है, किस वजह से नहीं है? लेट्स सी. लाइक फॉर एग्जांपल, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्सेज. नाउ ग्राउंड वाटर जो है वो रेन्यू हो जाता है. इट इज समथिंग जो हम लोग आपका 10th क्लास में ज्योग्राफी हम लोग डिस्कस कर रहे थे.
So then I have discussed with you about the renewable and non-renewable resources. So if you people have any doubt regarding it, you people can refer to that video of mine. It's in your geography का जो chapter है, पहला ही chapter, उसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ discuss किया हुआ है. So जो ground water है वो एक example है renewable resource का. ये जो resources हैं ये replenish किए जा सकते हैं और इन द केस ऑफ क्रॉप्स एंड प्लांट्स इनका जो नेचर है वो क्या है, रेप्लेनिशेबल है. ये दोबारा से जो है इनको हम उगा सकते हैं, इनको हम वापस ला सकते हैं. Like it's not like other resources जो कि some certain resources which are non renewable. So ये वैसे resources की तरह नहीं है. So however even these resources may be overused. अब overutilization की वजह से जो ये वाली resources हैं इनका जो डिप्लीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्केल से हो रहा है. आपको जितनी ज़रूरत है एक रिसोर्स को यूज़ करने की, आप उससे ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे हो, मतलब आप ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हो. एंड दोज रिसोर्सेज जो उनका टाइम है एग्जॉस्ट होने का, वो टाइम जो है वो कम हो गया क्योंकि हमने क्या किया, इसको ओवर यूज़ कर लिया है. सो देयरफॉर वी पीपल सी द काइंड ऑफ डेवलपमेंट वी पीपल आर जो हम मेंटेन कर रहे हैं डेवलपमेंट, वो बहुत ज़्यादा जो है सस्टेनेबल नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी, बिकॉज हम लोग इसे जो है तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. ग्राउंड वाटर को जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए वैसे ना यूज़ करके हम लोग जो है उसको ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं चीज़ों को. माना कि ये चीज़ें दोबारा से आ जाती है तो मतलब हम इसे ओवर यूटिलाइज करें. ओवर यूटिलाइज अगर हम इन्हें करते हैं तो जितना टाइम इनको दोबारा से आने में लगता है तो उतने टाइम तक हम क्या करेंगे, देयर इज अ प्रॉब्लम. Also, if people will overutilize the things, then it will deplete the resource. So therefore there will be a problem for future generations. So for example, in the case of groundwater, if we use more than what is being replenished by rain, then we would be overusing this resource. तो अगर बारिश होने से ज़्यादा हम ग्राउंड वाटर को इस्तेमाल कर लेते हैं तो हम उसका ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. बारिश हो नहीं रही है तो ग्राउंड वाटर आप कहाँ से लेकर आओगे. पहले हम देखते थे ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी जो हमसे पहले का समय था उसमें काफ़ी अच्छी थी, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे काफ़ी अच्छी थी, उनके पेरेंट्स के टाइम पे और भी अच्छी थी. तो धीरे धीरे जो है ग्राउंड वाटर डिप्लीट हो रहा है. Also rainfall is going down, and when rainfall is going down groundwater cannot be replenished. Then what are we people going to do? What are the future generations, what are they gonna do? So there are certain problems regarding the renewable resources as well because we people are overutilizing it. Then we people see that non renewable resources वो हैं जो कि exhaust हो जाते हैं after some year of use, and we have a fixed stock on earth which cannot be replenished. अब वो resources जो कि fixed stock में हैं जिनको हम replenish नहीं कर सकते हैं उनको हम लोग किस तरीके से जो है तरीके से इस्तेमाल करके वो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बच जाए. ऐसा तो है नहीं, अगर हम लोग धरती पे है तो हम जो रिसोर्सेज हैं हमें पता है कि वो काफ़ी कम है, इतनी ज़्यादा उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, फिर भी अगर हम लोग उसको इस्तेमाल करते रह रहे हैं तो फिर किस तरीके से जो है बाकी कमिंग फ्यूचर जनरेशन्स जो है वो उसको इस्तेमाल करेंगी. हमने ही यूटिलाइज कर लिया तो वो क्या करेंगे. वी हैव टू सेव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज व्हिच आर नॉन रिन्यूएबल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन्स एज वेल. So we do discover new resources that we did not know of earlier. New resources in this way add to the stock. तो वो resources जिनके बारे में हमें पहले नहीं पता और हम अब रिकवर कर रहे हैं उनको हम लोगों ने जो है निकाल करके अपने resources के stock में और ज़्यादा add कर लिया है. So however time even this will be exhausted. So in time ये चीज़ें भी exhaust हो जाएंगी. So therefore we people need to see a way in which सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, जो ये डेवलपमेंट है वो सस्टेन कर पाए. आपने डेवलपमेंट तो ले आए हो लेकिन अब रिसोर्सेज नहीं बचे तो किस तरीके से वो जो है डेवलपमेंट सस्टेन करेगी, नहीं कर पाएगी डेवलपमेंट खुद को सस्टेन. So this was all about sustainability of development. So what we people see is that present अगर हम देखें तो जो level of development है that is not sustainable. So present level of
development is not sustainable. Firstly, then we people see example जिससे बताया गया है, that is ground water और आपका renewable non renewable resources. So we people see renewable resources renewable resources are prone to overutilization, whereas non-renewable resources are prone to getting exhausted. So therefore we people see कि जो डेवलपमेंट है वो सस्टेन जो खुद को कर पाए ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है. So due to this we people are getting hard time to regulate the level of development. Okay, so we people see that new stock जो है new resources जो है discover किए जा रहे हैं. Discovery of new resources is a add-on to the stock, but over the time it will also get exhausted. So therefore we people say that हम लोगों को जो सस्टेन करना है डेवलपमेंट को उसको हम काफ़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं. सो वी विल हैव डिस्कस्ड द टॉपिक. I don't think so that there's a need for me to go through each and every जो हमने अभी डिस्कस किया उसके अंदर अभी तो मैं आप लोगों को रिविजन नहीं दूंगी इस चीज़ का. सो लेट्स जस्ट डिस्कस exhaustion of natural resources. Sorry, example 1, example 2. There are two boxes given here as example 1, example 2 on page number 15, page number 14. Let's see what is given in these boxes. So here I'll just show you on the screen. We people are discussing this box. Recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat of overuse in many parts of the country. About 300 districts have reported a water level decline of over 4 meters during past 20 years. Nearly 1/3 of the country is overusing their groundwater reserves. So we will see 1/3 जो है कंट्री के हिस्से वो ओवर यूज कर रहे हैं ग्राउंड वाटर रिजर्व्स को. इन अनदर 25 years 60% ऑफ द कंट्री वुड बी डूइंग द सेम इफ द प्रेजेंट वे ऑफ यूजिंग द रिसोर्सेज कंटिन्यू. तो 60% जो हमारी कंट्री ओवर यूटिलाइजेशन कर रही होगी ग्राउंड वाटर का. अगर जो अभी पैटर्न है ग्राउंड वाटर को यूज करने का वही पैटर्न अगर चलता रहा तो जो ओवर यूटिलाइजेशन है वो 60% पहुंच जाएगा. Groundwater overuse is particularly found in the agricultural prosperous region of Punjab and western UP, Hard Rock Plateau, areas of central and south India, some coastal areas and the rapidly growing urban settlements. So जिन एरिया के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्लीशन हम लोगों को दिख रहा है वो ये एरियाज हैं. And so why groundwater is overused? The simple reason groundwater is overused as in people they are wasting the water. They are not utilizing it in a maximum, like in an optimum manner. They are not doing it. So they are wasting the water more than using it.
सो देयरफॉर वी पीपल सी फर्स्ट रीजन ओवर यूटिलाइजेशन का हो गया कि जो लोग हैं उनको वाटर यूज करना जो है वो प्रॉपरली नहीं आ रहा है, वाटर मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं. समटाइम्स दे आर ओवर इरिगेटिंग देयर क्रॉप्स, यू नो दे आर यूजिंग वाटर फॉर थिंग्स जहाँ पे आप वाटर का यूटिलाइजेशन अवॉइड भी कर सकते हैं. देन वी पीपल सी दैट the water that is being used, it is not properly, उनको जो यूटिलाइजेशन है वो एक तरीके से करना नहीं आ रहा है. सो ओवर यूटिलाइजेशन, ओवर यूज जो है ग्राउंड वाटर का वो इन कारणों से हो रहा है. और कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज? ऑफ कोर्स, ओवर यूज के बिना डेवलपमेंट है. प्लस जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है. जो डेवलपमेंट है वो सस्टेन करेगी अगर ओवर यूटिलाइजेशन ना, क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी हम बचा लेंगे. व्हाई टू यूज थिंग्स जिसको कि कम यूज करके भी हमारा काम हो सकता है. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वाटर का यूज? दैट वी यूज इट फॉर ड्रिंकिंग. वी पीपल आर लिटरली not only overutilizing it, we people are also depleting the quality of water. So there are certain problems with it. Moving on to the next box, which is the exhaustion of natural resources in the Middle East, United States of America, world. Okay, so ये regions हैं. तीनों के अंदर जो रिजर्व्स है, ऑयल का रिजर्व, दिस इज द क्रूड ऑयल रिजर्व, तो मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा है. मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा है. अगर हम एक स्पेसिफिक रीजन को देखें तो मिडिल ईस्ट में है सबसे ज्यादा. उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर 48 है. और पूरे वर्ल्ड में देखें तो 1691, और उसका जो आधा है वो सिर्फ मिडिल ईस्ट के अंदर है. हम जानते हैं मिडिल ईस्ट इज एन एरिया जो कि बहुत ऑयल के अंदर काफी रिच माना जाता है. माना क्या जाता है, रिच है. सो द नंबर ऑफ ईयर्स रिजर्व्स विल लास्ट. अगर हम मिडिल ईस्ट में देखें तो रिजर्व्स जो हैं वो सिर्फ 69.9 ईयर्स के अंदर खत्म हो जाएंगे. अमेरिका के अंदर देखें तो 10 साल में, और वर्ल्ड के अंदर देखें तो 50 साल में. सो आने वाले समय में हमें ऑयल भी नसीब नहीं होगा अगर हम कुछ ऐसा इजाद नहीं कर ले तो जो कि हम पानी पे चला पाएं. तो हम लोग व्हीकल्स यूज नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रिसिटी पे. इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करने के लिए भी पीपल नीड वाटर टू एन गुड एक्सटेंट. पर हम वाटर को भी ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं. हमने कुछ छोड़ा थोड़ी है. रिसोर्सेज की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने कुछ नहीं छोड़ा है. वी पीपल आर जस्ट ओवर यूटिलाइजिंग इट. वी पीपल आर जस्ट putting it in the state of depletion. That is what we people are good at. So, for example, crude oil that we extract from the earth is a non-renewable resource. Now, crude oil की जो पहली बात है वो क्या है कि वो एक non-renewable resource है. However, we may find a source of oil that we did not know of earlier exploration are being undertaken all the time. हम लोग और तरीके ढूंढ रहे हैं जिससे कि हमें ऑयल का जो एक्सट्रैक्शन है वो हम लोग को पहले ना पता हो कि यहाँ पे भी पाया जा सकता है. इस तरीके से भी ऑयल जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है और अब हम उस तरीके से उसको कर रहे हो. सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन. मूविंग ऑन फॉरवर्ड. Yes, the table gives an estimate of reserves of crude oil. More important, it also tells us for how many years the stocks of crude oil will last if people continue to extract it at the present rate. Plus, पहले तो ये क्रूड ऑयल जो है किस किस एरिया में कितना है हमें वो दिया हुआ है टेबल में. फिर अगर जो इसका यूटिलाइजेशन है प्रेजेंट, तो ये जो रिजर्व है ये कब तक लास्ट करेगा उसका जो है हमें रेशियो दे रखा है. सो the reserves would last only 50 years more. सिर्फ 50 साल और. तो आपको लगता है सिर्फ 50 साल और जो है अगर रिजर्व्स रहें तो हम सबका काम चल सकता है. Is that the case? I don't think so. So next is this is for the world as a whole. However, different countries face different situations. ये तो पूरा कंट्री की बात है, लेकिन जो डिफरेंट कंट्रीज है वो डिफरेंट सिचुएशंस फेस करते हैं. हम जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया डिपेंड करता है अपने ऊपर. India, it depends on importing oil from abroad
क्यों? क्योंकि उसके खुद के पास इतना स्टॉक नहीं है। इंडिया के अपने पास स्टॉक नहीं है, तो वो बाहर की कंट्रीज पे डिपेंड करता है कि वो जो ऑयल है वो इम्पोर्ट कर पाए। और जो प्राइसेस है ऑयल के वो इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो बर्डन है वो बढ़ता जा रहा है। इसकी जो ऑयल को यूज करने का जो वो है और ऑयल की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। सो इसके प्राइसेस भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। हमारी कंट्री में देख लीजिए ऑयल के काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस हैं। सो वो इसी वजह से, बिकॉज दिस इज समथिंग जो कि इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है और इसका प्रोडक्शन जो है वो दे आर नॉट रेन्यूएबल, दे आर टोटली रिसोर्स जो कि नॉन रेन्यूएबल है। सो मूविंग ऑन फर्दर, जो कंट्रीज है जैसे यूएसए, वहाँ पे भी लो रिजर्व है और इसलिए वो चाहते हैं कि वो सिक्योर कर लें ऑयल को थ्रू द मिलिट्री पावर और थ्रू यूजिंग देयर इकोनॉमिक पावर। तो वो चाहते हैं कि वो लोग रिजर्व कर ले ऑयल को किसी तरीके से, क्योंकि वो जानते हैं कि ऑयल रिजर्व जो है वो काफ़ी कम है। जो क्वेश्चन आता है सस्टेनेबिलिटी का डेवलपमेंट को लेकर के, वो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज जो है वो रेस करता है इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट इज क्रूड ऑयल असेंशियल फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस इन द कंट्री? क्या क्रूड ऑयल जो है वो असेंशियल है एक कंट्री की डेवलपमेंट के लिए? क्या नहीं ज़रूरी है क्रूड ऑयल? बिल्कुल ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए। ऑयल, वी पीपल यूज ऑयल्स इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। मशीनरी में यूज़ हो रहा है, कार्स के लिए यूज़ हो रहा है, व्हीकल्स जितनी भी हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बट ठीक है, और इको फ्रेंडली भी हम लोगों ने मीन्स यूज़ करने शुरू कर दिए जैसे कि सीएनजी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को आने वाले टाइम में ऑयल का ज़रूरत ख़त्म हो जाएगा। वी पीपल विल बी नीडिंग ऑयल, क्रूड ऑयल विल बी रिक्वायर्ड। सो यस, it is very essential for the development process of a country. It is. Next, until unless we don't find an alternative to completely replace crude oil, which I don't think so is possible, maybe because technologically we people are advancing, but I don't know how much far we people can go without oil. But if we people find an alternative to completely replace crude oil, सिर्फ वही हमारे पास option बचता है। Otherwise, the crude oil is very essential for the development process. So next is India has to import crude oil. What problems to anticipate for the country looking at the above situation? So अब जो इंडिया जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है, तो इंडिया क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही है? अगर हम लोग देखें तो एक तो इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, प्लस इंडिया इज अ कंट्री विच इज डेवलपिंग, इट इज़ नॉट अ डेवलप्ड कंट्री. So therefore, a country which is in the middle of the process of developing, it will be requiring oil. It will be why? Because अभी के लिए तो oil मैंने जैसे आपको बताया काफ़ी सारी जगहों पे यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रहा है, कार्स व्हीकल्स के अंदर यूज़ हो रहा है. देन ऑयल जो है जो ऑयल हम लोग ऐसे हम व्हीकल्स की बात करें तो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो चलाता है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो ठप पड़ जाएगा ना एक तरीके से. क्या करेंगे फिर हम लोग? So it is very important to save oil. इंडिया के लिए तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री है, और जो कंट्री डेवलपिंग कंट्री होती है उन लोगों के लिए तो ऑयल जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करता है. सो देयरफॉर दे नीड टू सेव the reserve, and plus they need to use the crude oil in a very optimum manner, in a manner जिसमें कि वो maximum utilization उसका कर पाए, कम से कम इस्तेमाल के अंदर. और because they will be requiring it to as I said कि development के लिए बहुत important है oil. सो देयरफॉर अगर इंडिया इसको सेव नहीं करता है या इंडिया इसको तरीके से इस्तेमाल नहीं करता है, तो हम लोग जो है वो डेवलपिंग जो है वो अंडर डेवलपमेंट में भी जा सकता है. यहाँ पर जिंदगी भर डेवलपिंग वाला स्टेटस ही हम लोगों का चलता रहेगा. वी पीपल वोंट बी डेवलप्ड. ओके, सो मूविंग ऑन टू अदर बॉक्सेस. आई एम सॉरी, आई एम गोइंग बैकवर्ड्स व्हेन पीपल आर डिस्कसिंग द बॉक्सेस. और मैं बैकवर्ड जा रही हूँ बॉक्सेस को डिस्कस करते हुए. नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट है, ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ. या पहले मैं एक्टिविटी 3 आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ. वन वे टू फाइंड आउट इफ वी आर प्रॉपरली नरिश्ड इज टू कैलकुलेट द न्यूट्रिशन. साइंटिस्ट कॉल बॉडी मास इंडेक्स, BMI आप लोगों ने सुना होगा, बॉडी मास इंडेक्स. तो एक वो तरीका भी है ये कैलकुलेट करने का कि आपका बॉडी जो है वो कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है. सो it
this is easy to calculate. Let each student in the class find out his or her weight and height. Take weight of each student in kilograms, then take the height by drawing up a scale on the wall and measuring accurately with the head straight. Convert the height recorded in centimeters into meters. Divide the weight in kg by the square of the height. तो आप अगर वेट को हाइट के स्क्वायर से आप लोग डिवाइड कर देते हैं, जो कि हम मीटर्स के अंदर नाप रहे हैं, तो आपको अपना बीएमआई मिल जाएगा. द नंबर यू गेट इज कॉल्ड बीएमआई. इसको ऐसा करने से हमें बीएमआई मिल जाता है. देन लुक एट द बीएमआई फॉर एज टेबल्स गिवन ऑन द पेजेस 90, 91. sorry, we people, it's just an activity, so I am not taking it. I just told you कि BMI भी एक तरीका है इसको कैलकुलेट करने का. so आप जो है अपना BMI कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आप कितना हेल्दी हैं, कितना हेल्दी नहीं है. so a student's BMI could be within the normal range or less than the or more. For example, if a girl student is 14 and 8 months old and BMI is 15.2, then she is undernourished. तो एक लड़की जो कि 14 years 8 months की है, अगर उसका जो BMI है वो 15.2 से कम है तो वो undernourished है. सिमिलरली अगर कोई बॉय है जिसकी उम्र है 15 साल 6 महीना 15.5 साल 28 दिन, then he is overweight. तो अगर उसका देखा जाए तो वो ओवरवेट है. सो ये जो सिचुएशन है आप लोग इसकी ये अपनी क्लास में आप लोग करके देख सकते हैं, खुद का निकाल करके जो है आप लोग ये देख सकते हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बॉक्स विच इज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट. सो once it is realized that even though the level of income is important, yet it is an inadequate measure of the level of development, we begin to think of other criteria. There would be a long list of such criteria, but then it would not be so useful. What we need, small number of the most important things. Health और education जो है बहुत ही important indicator है development का. Other than money अगर हम लोग देखते हैं तो जो health है और जो education है वो एक बहुत ही important role play करते हैं. They are very important indicators such as the ones we used in comparison to Kerala and Haryana. जब हमने केरला और हरियाणा जो हम लोगों ने discuss किया था, so इसी बेसिस के ऊपर हम लोगों ने किया था. Moving on forward, are among them. Over the past decade or so, health and education indicators have come to be widely used along with the income as measure of development. So जो आपके health और education है वो अब वाइडली यूज किए जा रहे हैं. इनकम के साथ उनको भी देखा जाता है जब हम मेजर करते हैं डेवलपमेंट को. सो फॉर इंस्टेंस जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट है पब्लिश हुई थी, UNDP ने करी थी, वो कंपेयर करती है कंट्री को बेस्ड ऑन इट्स एजुकेशनल लेवल्स ऑफ द पीपल, उनके हेल्थ के स्टेटस पे और उनकी पर कैपिटा इनकम. तो अब हेल्थ, एजुकेशन और जो इनकम है इन तीनों को देखा जाता है. जब ये ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी उन्होंने इन तीनों फैक्टर्स को देखा था. किन किन फैक्टर्स को देखा था? पहला है एजुकेशन, देन इट इज हेल्थ एंड लास्टली पर कैपिटा इनकम. तो इन तीनों चीजों को जो है वो ध्यान में रखते हुए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने रिपोर्ट को निकाला था. So it would be interesting to look at certain relevant data regarding India and its neighbor from Human Development Report 2016. तो आप लोग भी जो है वो और कंट्रीज का डेटा निकाल सकते हैं, इंडिया से कंपेयर कर सकते हैं उनकी नेबरिंग कंट्री का और देख सकते हैं कि कौन सी कंट्रीज है वो किन मायनों में पीछे रह रही है. चाहे बांग्लादेश का उठाएं, चाहे आप नेपाल का उठाएं, श्रीलंका का उठाएं, चाइना का उठाएं, और आप देख सकते हैं इन तीनों फैक्टर्स को लेकर के जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कहाँ स्टैंड करता है. Okay, so we people have discussed these two boxes. plus तो ये टेबल 1.6 है. जब लास्ट में आप लोगों के साथ क्लास ले रही थी लास्ट सेशन में, तो मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर लिया था. सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट विद यू पीपल इन दिस सेशन. सो आई एम लीविंग दिस बॉक्स बिकॉज हम लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था. सो लेट्स सी.
Okay, so here we people will be discussing now the box. Okay, हम लोगों ने ये वाला बॉक्स भी डिस्कस कर लिया था, जो ये वाला था सम कंपैरेटिव डेटा और हरियाणा केरला बिहार, ये भी मेरा आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। प्लस ये जो टेबल 1.3 है, क्योंकि हम लोगों ने इनकम एंड क्राइटेरिया वाला जब टॉपिक डिस्कस किया था तो हमने ये सारा डिस्कस कर लिया था, तो आई एम नॉट टेकिंग दीज बॉक्सेस। सो लेट्स सी, अब एवरेज इनकम का जो बॉक्स है हम लोग वो डिस्कस करते हैं। So let's see. Okay, so while averages are useful for comparison, they also hide disparities. जो averages को जब हम compare करते हैं तो disparities जो हैं वो छुप जाती हैं. So for example, let us consider two countries A and B. For the sake of simplicity, we have assumed that they only have 5 citizens each. तो A और B हमने country ले लिया, उसमें 5 citizens हैं, ये आप देख सकते हैं, ये लीजिए. ए और बी कंट्री है, इनके 5 सिटीजन्स हैं, 5 सिटीजन्स है ए कंट्री में, 5 सिटीजन्स है बी कंट्री के अंदर. सो we have assumed that they have only 5 citizens each. Based on the data given in table 1.2, calculate the average income of both the countries. तो आप जानते हैं एवरेज इनकम जो है हम किस तरीके से निकालते हैं. एवरेज इनकम को निकालने का तरीका क्या है, जब टोटल इनकम को डिवाइड किया जाता है टोटल पॉपुलेशन से. तो जो टोटल इनकम है, ये इनकम है लोगों की, आप इनको इनकी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे. पहले आप इन्हें प्लस कर लीजिए, उसके बाद जो अमाउंट आएगी उसको आप जितने सिटीजन्स हैं, 5 सिटीजन्स हैं, तो आप 5 से उसको डिवाइड कर दीजिए, आपको आपकी एवरेज मिल जाएगी. ओके, अगेन दूसरे केस में भी आप यही करेंगे. सो आप दूसरे केस में भी यही करने वाले हैं. आप जो इसकी टोटल एवरेज है निकालेंगे. कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम को आप डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से. दैट इज हाउ यू पीपल विल बी कैलकुलेटिंग. सो विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन बोथ दीज कंट्रीज? आर बोथ equally developed? Perhaps some of us may like to live in a country B if we are assured of being its 5th citizens, but if it is a lottery that decides a citizenship number, then perhaps the most of us will prefer to live in कंट्री बी. सो अगर हम देखें तो कंट्री ए के अंदर जो है वो हर सिटीजन की ठीक ठीक इनकम है सारी, और अगर हम कंट्री बी में देखें तो जो सिर्फ 5वां सिटीजन है उसकी इनकम अच्छी है एज कम्पेयर टू दी अदर 4 सिटीजन जिनके 500 रुपए यहाँ पे लिखी हुई है. सो अगर तो हम 5th वाले बी के अंदर हम 5th सिटीजन है तो हम खुश रहेंगे, लेकिन अगर हम लोग 1 to 4 के बीच में कोई सिटीजन है तो हम परेशान होंगे, क्योंकि हमारी इनकम बहुत कम है. तो उसलिए हम क्या करेंगे कि हम कंट्री ए में रहना ज़्यादा पसंद करेंगे. कम से कम हमारी एक एवरेज इनकम तो अच्छी है, मतलब चलो इतना तो इनकम हमारे पास है. सो दिस ऐसे में तो हम लोग प्रेफर करेंगे हम बी कंट्री के अंदर रह लें, सॉरी ए कंट्री के अंदर रह लें. So even though the countries have identical average income, country A is preferred because it has more equitable distribution. Country A के अंदर ज़्यादा equitable distribution है, इसलिए country A जो है वो ज़्यादा prefer की जाएगी, क्योंकि उसमें equitable distribution है income का. So जो country है ये ना ज़्यादा rich है ना ही ज़्यादा poor है. जो सिटीजन्स है कंट्री ए के वो या तो बहुत ज़्यादा पुअर है या बहुत ज़्यादा रिच है, बीच का उनको कोई चीज़ ही नहीं है. तो इस वजह से हम लोग कंट्री बी में रहना प्रेफर नहीं करेंगे, क्योंकि भाई या तो हम गरीब होंगे या तो हम बहुत अमीर होंगे. एंड इट डिपेंड्स, अगर तो लॉटरी सिस्टम है तो भाई किस्मत पे डिपेंड करता है फिर तो. सो hence while average income is useful for comparison, it does not tell us income is distributed among the people. जो हम एवरेज इनकम निकालते हैं तो हम पूरी कंट्री का तो निकाल लेते हैं, लेकिन पर सिटीजन का जो इनकम है वो हम लोग, हमें क्या पता किसको कितना मिल पा रहा है. तो एवरेज इनकम जो है वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं है ये देखने में कि कंट्री में कितनी पावर्टी है और कितनी पावर्टी नहीं है. अब हम इंडिविजुअल लेवल्स पे अगर यहाँ पर देखें तो हमें पता है कि पावर्टी है, क्योंकि सिर्फ 5 सिटीजन है, पर जिस कंट्री के अंदर 5 करोड़ बंदे हैं, 5,000 करोड़ बंदे हैं, तो कैसे आप देखेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कौन अमीर है कौन गरीब है, कौन मिनिमम उसमें जी रहा है, कौन मिडिल क्लास है, कोई बिलो पॉवर्टी लाइन चल रहा है, तो आप ये कैसे देखेंगे. सो दिस विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक. ओके, सो कंट्री ओके, सो इक्वालिटी जो है वो काफ़ी मुश्किल ही है ऐसे केस के अंदर. सो okay, so next is give 3 examples where an average is used for comparing situations
वो एग्जाम्पल हमसे मांग रहे हैं जहाँ पे कि एवरेज को एवरेज का इस्तेमाल किया जाता है कंपेयर करने के लिए। स्टूडेंट्स की परसेंटेजेस आप जानते हैं, ये तो काफ़ी ज़्यादा ही है कि स्टूडेंट की परसेंटेजेस को किया जाता है, देन पर कैपिटा इनकम के लिए किया जाता है, एंड ऑल्सो देन देयर इज एजुकेशन को देखने के लिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट को भी देखने के लिए आई थिंक किया जाता है, प्लस मोर्टेलिटी रेट को देखने के लिए भी किया जाता है। सो नेक्स्ट इज व्हाई डू यू थिंक एवरेज इनकम इज एन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट? एवरेज इनकम एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्यों है डेवलपमेंट का? बिकॉज अगर हम ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट देखें, उसको कैटेगराइज करना है एज अ डेवलपिंग कंट्री, डेवलप्ड कंट्री और अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो भाई एवरेज इनकम का क्राइटेरिया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकम से आप बहुत सारी चीज़ें नहीं पर बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी आसान बना देती है। सो देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट। Next is, beside the size of per capita income, what other property of income is important comparing two or more societies? और क्या हो सकते हैं per capita income के अलावा, और क्या हो सकते हैं प्रॉपर्टी के बेसिस पे? what other property of income is important? हाउसिंग हो सकता है, या फिर आपका और प्रॉपर्टीज जो आप लोग ओन कर सकते हैं वो भी हो सकता है सोसाइटी को कंपेयर करने के लिए कि कैसे कैसे चल रहा है। अभी ये तो थोड़ा वेग ही मेरे को आइडिया लग रहा है। नेक्स्ट इज, suppose records show that the average income in a country has been increasing over a period of time. From this we can conclude that all sections of economy have become better. Suppose records show that the average income in a country has been increasing over the period of time. From this we can conclude that all sections of the economy have become better. Illustrate your answer with an example. सो इट इज़ कंट्री का अगर एवरेज इनकम अच्छा होगा तो क्या ओवर द टाइम हम देखते हैं कि सारे सेक्शंस जो हैं इकोनॉमी के वो बेटर होंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज अभी हमने ऊपर टेबल के अंदर इस चीज़ को डिस्कस किया है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर जो है पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम जो है वो अच्छा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे सेक्शंस जो है सोसाइटी के वो भी इक्वली आगे बढ़ पा रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसका एग्जाम्पल जो आप टेबल 1.2 में देख सकते हैं। सो फ्रॉम द टेक्स्ट फाइंड आउट द पर कैपिटा income in a country has been increasing over the time. So okay, per capita income level of low income countries as per world development reports. So जो टेक्स्ट है हमें देखना है कि per capita income level जो है लो income countries का वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से, सो वो भी हम लोगों ने उस टेबल के अंदर देखा है। सो यू पीपल विल गेट द आंसर फ्रॉम देयर। सो राइट अ पैराग्राफ ऑन योर नोशन ऑफ व्हाट शुड इंडिया डू और अचीव टू बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। इंडिया को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए, उसके बारे में जो है हम लोगों से पूछा जा रहा है। सो इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए पहले तो पावर्टी के जो इशू है उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, और जो सोशल डिस्पैरिटीज़ हैं उनको हटाना बहुत ज़रूरी है इंडिया का। देन it is also important that India works in other section like eradicating poverty, health care अच्छा करना, education अच्छी provide करना, then जो हमारे यहाँ पर सोशल इवल्स हैं उनको हटाना डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देन रिच इज़ गेटिंग रिच, जो रिच पुअर गैप है उसको कम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी कंट्री के अंदर। सो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स जिससे कि इंडिया का डेवलपमेंट जो है वो हो सकता है। सो इंडिया कैन अचीव इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम all these things. So we people have discussed many of the boxes. We people are left to discuss I think only 2 boxes. So I'll be discussing 2 boxes in the next class. 2 to 3 boxes we people are left to discuss. So we people will be discussing it in the next class, and plus we people will be starting up with the question answer part of this chapter. So this was all for today's video. Thank you everyone.